Hello everyone, good afternoon. Good I am Sumina Sahani. On behalf of Medical Foundation India and India Alternative Care Network, I welcome you all to the ninth edition of Leadership Dialogue Series 25-26. We can see a lot of people joining in. So, today is the ninth edition of our Leadership Dialogue series, and this dialogue is particularly focused on education and employability for children and youth. I am glad to see such an overwhelming participation and registration. We have almost 189 plus participants registered for this dialogue. So, before we begin today's discussion and dialogue, I would like to make a few announcements. So, in compliance with IACN and Medical Foundation India, child safeguarding policies, none of the speakers will be using real names or locations of the children and family members while giving examples, sharing case studies, or anecdotes. And it is also requested from all the participants in the audience to maintain confidentiality of children and not share any information that may disclose their identity while sharing examples during Q&A sessions. Moving forward, we also request all the participants to kindly introduce yourselves in the chat box since it's going to be a very engaging and interesting discussion moving forward. We would want to ensure no distractions, and all the participants are requested to keep their mics off while the session is in progress. And if possible, it would be great if all the videos are on. It's always encouraging to see all these people attending the session actively. And I would also sincerely request everyone to share. All the participants are also requested to share any resources. If you have any learning documents or concerns, you can always use the chat box to communicate, and we'll definitely get back to you. And you can also share all your questions in the Q&A tab, and these questions will be taken up during the open forum towards the end of the discussion after the panel is done. So this leadership dialogue series is one of our initiatives to acknowledge the work of child protection functionaries, creating a platform that amplifies narratives of family strengthening and family-based alternative care, influencing the ecosystem, and deepens the impact of work done in the area of family strengthening and family-based alternative care. It also fosters collaboration among government stakeholders, civil society organizations, practitioners, subject matter experts, and care experienced youth. This year's Leadership Dialogue Series 25-26 explores how family strengthening services can be better designed, delivered, and measured through a systems lens with a special focus on convergence with elite departments. And particularly, today's leadership dialogue will focus on the role of government and civil society organizations to create an inclusive society where every care experienced youth, child in a childcare institution, and youth from vulnerable families have equal access to quality education, life skills, and dignified employment opportunities, empowering them to lead independent, resilient, and fulfilling lives. So, moving ahead, I would like to introduce the moderator for today's discussion. Ms. Smita Shetty. She is the CEO of Catalysts for Social Action, where she leads initiatives in child welfare and social reform. A biomedical engineering graduate from DJ Sangvi College, Mumbai, and an MBA holder from Zicklin School of Business, New York, she spent 15 years in senior finance roles at Lehman Brothers and Nomura across New York and Mumbai. Transitioning to the development sector, she earned a master's in social work, pursued advanced certifications in data science from MIT, and is currently a PhD scholar at IIT, focusing on inclusion and entrepreneurship. Her unique blend of corporate expertise, academic rigor, and passion for social change drives CSA's mission of creating sustainable impact for vulnerable children. So, we welcome you, Smita ma'am. Thank you so much. So, over to you. Thank you, Sumina. Good afternoon, everyone, and or sabhi ko mera namaskar. Thank you for joining us for the ninth Leadership Dialogue on Education and Employability. Today's conversation is about education and employment,
but very specifically, it is about what these mean for vulnerable children and youth. यानी ऐसे युवा जो कम रिसोर्सेज के साथ बड़े होते हैं, जिनके पास स्ट्रॉन्ग सेफ्टी नेट्स नहीं होते और जिन्हें क्रिटिकल मोमेंट्स पर सही गाइडेंस मिलना मुश्किल होता है. For many young people, the journey from school to work is not a straight line. लेकिन vulnerable children और youth के लिए ये जर्नी और भी मुश्किल होती है. स्कूलिंग में भी डिसरप्टेड, करियर ऑप्शंस का एक्सपोजर लिमिटेड होता है और की डिसीजन पॉइंट्स पर गाइडेंस ऑफन मिसिंग होती है. डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस से आने वाले युवाओं के लिए स्कूल से स्किल और स्किल से काम का सफर काफी मुश्किल होता है और एक छोटा सा गैप गाइडेंस का या सपोर्ट का पूरी जर्नी को ट्रैक से हटा सकता है. What we see again and again is that the biggest risks are not the starting point, बल्कि transition points पर होते हैं. After class 10 और 12, जब कोर्स या स्किल चूज करनी होती है और जब पहली बार वर्कफोर्स में एंट्री होती है, इन मोमेंट्स पर वल्नरेबल यूथ ऑफन दे फॉल थ्रू द क्रैक्स. इसलिए नहीं कि उनमें एबिलिटी की कमी होती है, बट बिकॉज टाइमली गाइडेंस, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स और कंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट नहीं होती. ये युवा कमजोर नहीं होते, उनके पास सपोर्ट और डायरेक्शन कम होती है. दिस ब्रिंग्स अस टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Education alone does not automatically lead to employment. Vulnerable children and youth के लिए एजुकेशन का एम्प्लॉयबिलिटी से जुड़ना बहुत जरूरी है. एम्प्लॉयबिलिटी सिर्फ जॉब मिलने का नाम नहीं है. इट इज अबाउट जॉब के लिए रेडी होना, जॉब पर टिकना और टाइम के साथ ग्रो करना. सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं होती. पढ़ाई के साथ एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब रेडीनेस इक्वली इंपॉर्टेंट होती है. फॉर वल्नरेबल यूथ के लिए एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है बहुत प्रैक्टिकल सपोर्ट, करियर अवेयरनेस यानी एक्चुअल ऑप्शंस का पता होना, एप्टीट्यूड और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से कोर्स चूज करना, वर्क प्लेस स्किल्स डेवलप करना जैसे कि कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज्म, और सबसे ज़रूरी बात, पहली जॉब के बाद भी सपोर्ट मिलना. ये स्किल्स स्कूल या कॉलेज में हमेशा नहीं मिलती, लेकिन बिना इनके जॉब टिकती नहीं है. जब एम्प्लॉयबिलिटी और जॉब रेडीनेस एजुकेशन के साथ बिल्ड की जाती है, आउटकम सिग्निफिकेंटली चेंज होते हैं. हम देखते हैं कि ऐसे वल्नरेबल यूथ जिन्हें स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस मिलती है, उनमें 70% से ज्यादा को एम्प्लॉयमेंट मिलता है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 90% से ज्यादा हमारे युवा 2 साल से ज्यादा भी एम्प्लॉयमेंट में बने रहते हैं. जब मेंटरिंग और फॉलोअप सपोर्ट होता है तो स्किलिंग के दौरान ड्रॉप आउट रेट्स भी काफी कम हो जाते हैं. ये हमें एक क्लियर मैसेज देता है. प्लेसमेंट अलोन इज नॉट सक्सेस. सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ ही रियल सक्सेस है. जॉब मिलना तो बस शुरुआत है. जॉब पर टिकना और आगे बढ़ना ही असली सफलता है. सो फॉर यंग पीपल जिनके पास स्ट्रॉन्ग फैमिली सेफ्टी नेट्स नहीं होते, पहली जॉब सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं होती है. इट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी और ये बिलीफ देती है कि एक अलग और बेटर फ्यूचर पॉसिबल है. जब एम्प्लॉयबिलिटी को एजुकेशन का कोर हिस्सा माना जाता है, नॉट जस्ट एन एड ऑन,
तो युवा शॉर्ट टर्म जॉब्स के साइकिल में नहीं फंसते हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म करियर्स बिल्ड कर पाते हैं। आज हम इसी पर बातचीत करना चाहते हैं। What have we learned so far about building education to employability pathways जो हमारे बच्चे और यूथ के लिए एक्चुअली काम करते हैं? कौन सी चीजें युवाओं को एजुकेशन में बनाए रखती है और स्किल्स और जॉब की तरफ स्मूथ ट्रांजिशन में मदद करती है? सिस्टम्स आज भी कहाँ ब्रेक होते हैं और गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी और प्रैक्टिशनर्स मिलकर कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं? और फाइनली एक युवा के नजरिए से ये पूरी जर्नी कैसी लगती है? So our panel today brings together policy perspectives, large scale implementation experience, and lived experience. So we are very fortunate to have with us today a very distinguished panel of experts जिन्होंने अपने काम के द्वारा बच्चे और युवा के लिए contributions किए हैं, especially education, employability और livelihood pathways को strengthen करते हुए और उन्हें स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ इफेक्टिवली लिंक करते हुए. So with that, let me now introduce our panelists. Mr. Sanjay Kabir, good afternoon and good evening, is a development professional with 15 plus years of experience working at the intersection of policy, practice, and skilling for youth employability. Currently, he is a state project manager for Jivika, Government of Bihar. उनका काम मेनली एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट पाथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाना, पॉलिसी और प्रोग्राम लर्निंग को इन्फॉर्म करना और वल्नरेबल और ट्रांजिशनिंग यूथ के लिए इंक्लूसिव लाइवलीहुड्स आउटकम्स इंश्योर करना रहा है. Next, coming to our next esteemed panelist, Dr. Shubmoy Baduri. Hello, Shubmoy ji. He is a development practitioner and policy advocate with 15 plus years of experience working on life skills education, employability, and sports for social change across India and Southeast Asia. उन्होंने गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल एजेंसीज और सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर एजुकेशन सिस्टम्स में लाइफ स्किल्स और यूथ फोकस्ड अप्रोचेस इंटीग्रेट करने का काम किया है. Currently, he leads the capacity building and collaborations vertical at Magic Bus India Foundation. Next, we have a very important member of our panel, Nidhi Kumari. She comes from Nathupur village in Patna, Bihar, and began her education with Nari Gunjan in Danapur, completing her schooling locally. उन्होंने आविष्कार के प्रोग्राम के थ्रू प्राइमरी मैथ एजुकेटर की ट्रेनिंग करी है और बाद में उनके 2-year फेलोशिप का हिस्सा बनी, जहां उनका एजुकेशन के लिए पैशन और स्ट्रांग हुआ. अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद निधि अब अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में एमएड परस्यू कर रही है और अपनी जर्नी के थ्रू रिमोट विलेजेस की लड़कियों को इंस्पायर कर रही है. All panelists, thank you for taking the time to be with us here today. And thank you so much for all our audience for taking time. आज का डायलॉग सॉल्यूशन से ज्यादा लर्निंग पर फोकस रहेगा. हम यहाँ सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं, सिस्टम की रियलिटीज भी समझना चाहते हैं. So with that context and keeping that context, I would like to begin with our first question. Ma'am. Meena, yes. Yes.
Thank you so much for introducing the esteemed panel for today, Smita ma'am. So, before we begin our discussion, we would like to engage you all in a very quick and interesting poll. So, we have two quick questions for all of you. So, you may please answer both the questions. So, here is question number one for all of you. So, all of you can answer. In your view, where does the education to employability pathway break down most for adolescents and youth from vulnerable backgrounds? And you can choose all that you think are relevant to the question. आपके विचार में कमजोर पृष्ठभूमि के किशोरों और युवाओं के लिए शिक्षा के रोजगार प्राप्ति का मार्ग सबसे अधिक कहाँ बाधित होता है? स्कूल रिटेंशन, फाउंडेशनल लर्निंग में, कौशल प्रधा कौशल प्रधारित प्रशिक्षण के समाजन रोजगार के संक्रमण में, करियर गाइडेंस एंड एक्सपोजर ऑप्शंस में, एक्सेस टू हायर एजुकेशन. So whatever you think is relevant to the question, you may please answer. We can move to question number 2 of the poll. Yes. So what single factor do you believe most improves employability outcomes for youth with vulnerability? आप सभी के विचार में कौन सा एक कारक ऐसा है जो वंचित समूह के युवाओं को रोजगार क्षमता में सबसे अधिक सुधार लाने में सहायक होता है? इज इट अर्ली एंड कंटिन्यूअस करियर गाइडेंस, प्रारंभिक और निरंतर करियर मार्गदर्शन, और रेलेवेंट मार्केट अलायंस स्किल्स ट्रेनिंग, बाजार के अनुरूप प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण, और इज इट स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस विद एम्प्लॉयर्स एंड इंडस्ट्री, नियोक्ताओं और उद्योग के साथ मजबूत संबंध, और इज इट फाइनेंशियल एंड सोशल सपोर्ट ड्यूरिंग ट्रांजिशंस, परिवर्तन के दौरान वित्तीय और सामाजिक सहायता, और इज इट कोऑर्डिनेटेड एक्शन बिटवीन एजुकेशन, स्किलिंग एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम्स, शिक्षा, कौशल विकास और बाल संरक्षण प्रणालियों के बीच समन्वित कार्यवाही. So whatever you think is relevant to the question, please select. Thank you so much for participating, everyone. I think we have received a lot of relevant answers, and we'll definitely review them and share it with all of you. So over to Smita ji. Thank you, Sumina. So now we would start with the, a panel discussion. So the first question to Sanjay ji. Sanjay ji, India often speaks with pride about its demographic dividend and the promise of a young population. NEP 2020, Skill India और मिशन वात्सल्य जैसे फ्रेमवर्क्स के थ्रू एडोलसेंस और यूथ की कैपेसिटीज बिल्ड करने के लिए काफी काम हुआ है. आपके एक्सपीरियंस में अब तक के की लर्निंग्स क्या रहे हैं, खासकर वल्नरेबल बैकग्राउंड से आने वाले युवाओं के लिए? कौन से पॉलिसी इन्वेस्टमेंट्स, रिफॉर्म्स या इनोवेशंस को आज प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि स्कूल से स्किलिंग, हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तक के ट्रांजिशंस ज्यादा स्मूथर हो पाए? ये संजय जी. Thank you, Smita ji, and thanks Miracle all team members और जुड़े हुए सारे लिसनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद. आप इस महत्वपूर्ण टॉपिक में भागीदारी लिए हैं. और the questionnaire which were shared earlier, just 2-3 questions, it is very relevant to understand the public expectation through these questions. तो आपके सवालों को मैं थोड़ा सा दो बिंदुओं पे मैं कोशिश करूंगा इसको एलोबरेट करने का, क्योंकि 15 साल से मैं सरकार के साथ स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी को मैं देखता हूं. उसका रिलेशन है रेफरेंस टू हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. तो एक जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक लाइबिलिटीज, एट द सेम टाइम उसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि unemployability versus unemployment. It is purely a mirror of these all two connotations. Challenges अगर आप रिलेट करेंगे when 1950s के पीरियड में इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट एजुकेशन में किया था. They focused to have higher education premier institutions, reference to world लेवल के कुछ इंस्टीट्यूशंस हो. तो उसी पीरियड में कई सारे आईआईटी और आईएम की शुरुआत हुई थी.
सो उसको अगर पॉलिसी पर्सपेक्टिव से देखेंगे, एट द सेम टाइम सेम पीरियड में ईस्ट एशिया में लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने इंट्री लेवल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस की थी. So one academician perspective is we were focused towards high education in primary period during 1950s to 1960s 70s, और उसका प्रतिफल ये रहा कि वी आर वेरी प्रोफाउंड टू से कि ग्लोबल लेवल पे हमारे जो हायर स्किल पर्सन्स है, चाहे वो डिफरेंट एमएनसीज कंपनीज वगैरह हो, तो शायद इंडिया के लोगों का बोलबाला है. एट द सेम टाइम हमको ये भी कहने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि there are many people who have completed their secondary school, but उसमें कुछ ऐसे more than 50% people हैं जो पढ़ने लिखने नहीं आता है. So this is the contrast between the person belongs to the so-called, as per your definition, vulnerable community, and the people who are well versed, reference to economical stability, very international exposure. They got the mileage to have international opportunity to be take up. तो ये चीजें इन बिटवीन ये देखा गया, उसके आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राई किया कि हाउ वी कैन मेक द ट्यूनिंग बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी. तो कई सारी चीजें हुई. इनफैक्ट उसको रिलेट करेंगे जब अब हिस्टोरिसिटी में एक चेन बनता है. आप देखेंगे 1970s के पीरियड में, 80s के पीरियड में जो भी स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम चल रहा था, समवेयर वी मिस टू लिंक विद द प्लेसमेंट. तो चाहे वो एक उदाहरण दे, मान लीजिए SGSY एक स्पेशल प्रोजेक्ट चलता था, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना. द गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन मैंडेट. They assume that once the people will get training, obviously they will get the bargaining power, and they can exist into the market. जो इंडस्ट्रियल सेटअप में जाएंगे, वहां पे अपने तरीके को अपने सेट करेंगे. वो मिस हुआ. इनफैक्ट that program was in silo situation where we have not integrated with the industrial need and industrial participation. तो ये सारी चीजें चैलेंज हुई हैं, और उसको धीरे धीरे कोशिश किया गया कि ताकि हम लिंक करें. तो बोलते हैं ना कि एक उदाहरण है कि जब आप देयर आर 3 बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा और मकान. सबसे पहले रोटी की बात होती है. तो हम अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर 1960s से लेकर के 2025 की बात करें, समवेयर एक लैडर्स बाय लैडर्स हम उसको फॉलो कर रहे हैं. Although it was required to follow the needs reference to डायरेक्ट एजुकेशन से एम्प्लॉयबिलिटी को लिंक करें, लेकिन धीरे धीरे अब फॉलो हो रहा है, जिसके आधार पे देखेंगे कि फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम शुरू किया जिसको बोलते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. एट द सेम टाइम दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शुरू हुई. तो ये सारी चीजें थी कि एक कैंडिडेट, लेकिन वहां पे भी एक चैलेंज यहाँ पे ये हो रहा था कि वी assume the candidates must be from. Yeah, you want to say something? Yeah, Sanjay ji, if you could start wrapping up. Yeah, you have 15 seconds to go. Yeah, Thank you. yeah. So अभी चैलेंज क्या हो रहा है कि समवेयर वी आर नॉट ट्यून्ड विद द, मतलब अभी भी कोई ऐसी इस तरह की पॉलिसी नहीं अभी डिफाइंड हो रही है. जो भी कॉन्सेप्ट अभी है, जो अभी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क डिफाइन किया गया, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है, बट धरातल पे भी शुरुआत नहीं हुई है. गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इस तरीके से शुरू भी किए कि हम एक डेडिकेटेड स्किल डेवलपमेंट और यूथ एम्पावरमेंट का एक डिपार्टमेंट शुरू करके सारे प्रोग्राम को शुरू करें, और जिसके वजह से हम पूरा इस चीज को पूरा करें. सो दिस इज द पर्सपेक्टिव बाय विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रियलाइज how we can maximize the skill per person, reference to जो आप बोलते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, जिसको बोलते हैं कि रीड टू लर्न एंड लर्न टू रीड. तो ये जो अगर इस गैप को हम पूरा कर लें तो शायद हम बेहतर एम्प्लॉयबिलिटी रेफरेंस टू एजुकेशन कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक यू संजय जी. आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखी. अगर हमने सही तरह से इन्वेस्ट नहीं किया तो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक लायबिलिटी भी बन सकता है. आपने ये भी हाईलाइट किया कि स्किलिंग वीक स्कूलिंग को कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, खासकर जब फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी स्ट्रांग ना हो.
और फाइनली आपने ये कहा कि स्किलिंग को सिर्फ रेमेडियल सोल्यूशन के रूप में नहीं, बल्कि डेवलपमेंट के कोर फ्रेमवर्क के रूप में देखना होगा, especially for vulnerable youth. Yeah. Yeah. Next question is to Shubhmoy ji. शुभमोय जी, आपने समग्र शिक्षा, स्किल इंडिया और मिशन वात्सल्य जैसे गवर्नमेंट फ्रेमवर्क्स के साथ काफी स्केल पर काम किया है। पिछले कुछ सालों के एक्सपीरियंस को देखते हुए आपके लिए कौन से सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग्स रहे हैं जो वल्नरेबल चिल्ड्रन और यूथ को एजुकेशन में बनाए रखते हैं और उन्हें स्किल्स और वर्क की तरफ स्मूथली ट्रांजिशन करने में मदद करते हैं? और दूसरी तरफ कौन से फैक्टर्स हैं जो आज भी इन ट्रांजिशंस को ब्लॉक करते हैं या यूथ को बीच रास्ते में छोड़ देते हैं? ओवर टू यू शुभमोय जी। Thank you, Smita. And again, at the outset, thank you, Miracle Foundation, for hosting this very important leadership dialogue and inviting me to be a part of this panel. Thank you, Aap sabhi ka. And I will just like to also start where Sanjay ji left. And Smita, to your point that what are the blocks that we see right now today, and then I'll come to the enablers. And I also want to project some data point from a future perspective. हम बहुत सुनते हैं कि हमारा देश आज विकसित भारत की तरफ बात कर रहा है 2047 को लेके, एंड वी वांट टू बी अ 30 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ऑल वो सारी चीजें। पर जब हम यंग वल्नरेबल यंग पीपल की बात करते हैं तो मैं स्पेसिफिकली थोड़ा सा उसको गर्ल्स और यंग वुमेन की तरफ अगर लेके आऊं, तो विकसित भारत को 30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में हमको लगभग 35 से 40 करोड़ वुमेन्स को वर्कफोर्स में डालना पड़ेगा। आज की तारीख में जिस पेस में वी आर मूविंग अहेड, we will be able to probably only achieve 70% of that target, and we may still fall short of 14 to 15 crore young women who will not be a part of the workforce. Now, ये इसको थोड़ा सा बैक ट्रैक करना भी जरूरी है कि वो गैप कहाँ पे आ रहा है, एंड दैट्स वेयर इट इज नॉट ओनली द फाउंडेशनल लर्निंग फेज विच इज द अर्ली द प्राइमरी ग्रेड्स विद इन द स्कूल, but it actually happens in the middle school and the senior secondary school. So जो ये 12 to 18 years वाला जो एज ग्रुप है, वहां पे ये देखने को मिल रहा है कि that's where the maximum school dropout happens. The school completion is not happening, and eventually that leads to उस तरीके का स्किलिंग नहीं हो रहा है, उस तरीके के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो रही है। एक और डेटा जो है, जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है 2024 का, that also says that young people in the age group of 15 to 24, इसमें से लगभग 24.2% ऑफ यंग पीपल इंडिया में ऐसे हैं बिटवीन द एज ऑफ 15 टू 24 जो हु आर नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एनी ट्रेनिंग कोर्सेस। और उस 24% में लगभग 35 to 38% गर्ल्स हैं, गर्ल्स और यंग वुमेन है। सो इसलिए जब हम वल्नरेबिलिटी की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें उस कॉन्टेक्स्ट में भी देखने की जरूरत है। और जब हम वी कम टू दैट स्कूल स्पेस, वी कम टू दैट एडोलेसेंट स्पेस वेयर they are on the cusp of, on the verge of transitioning to skilling space or to the world of work, that's where the maximum dropouts are happening for various reasons. The reason could be the school infrastructure, the reason that within the infrastructure there are no functional toilets in the school. It could be how the teacher uses the pedagogy, the teaching pedagogies, whether the child is able to access school for various personal reasons or transportation facilities. So there could be multiple things that are right now playing in a particular community जो उन बच्चों को और बच्चियों को रोकते हैं in terms of accessing school and completing their school education. But at the same time, where I also want to touch base on the enablers, and luckily, and it is good on us that a lot of enablers today are coming from a policy point of view. So be it a Mission Vatsalya, be it National Education Policy, and be it there are multiple other policies which the Health Department is releasing, which is the Youth Affairs and Sports Departments are releasing, that allows a tremendous scope of convergence. That allows where the National Education Policy is already pushing, where they have mandated the vocational education to be a compulsory subject in schools. It is no longer a non-optional subject for any schools to continue. So how about pursuing vocational education as a compulsory subject? How about changing the learning pedagogies, the learning methods that the teachers are delivering
to students? How about bringing more internship and apprenticeship kind of projects within the school, more career related skilling? So ये सारी चीजें जो पॉलिसी के अंतर्गत कही गई हैं, वो सारी चीजें पॉलिसी कहता है. नाउ इट इज ऑल्सो हार्टनिंग टू सी कि कुछ कुछ जगह पे और बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल भी हो रहा है और उसको देख रहा है. बट अगेन फ्रॉम जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण परख जिसको एनसीईआरटी के अंडर में जो आता है, जब उन्होंने 2024 में इस चीज को इवेल्युएट किया तो वो डेटा ये भी कहता है कि इंडिया में लेस देन 50% ऑफ स्कूल्स करेंटली ऑफर एनीथिंग रिलेटेड टू स्किलिंग. सो वहां पे जो आइसोलेशन है बिटवीन जिस तरीके से हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स के तरफ स्कूल को देखते हैं और उसका जो ट्रांजिशन हायर ग्रेड्स में स्किलिंग के तरफ नहीं हो रहा है, दैट इज डेफिनेटली a block or a gap that we see today. But at the same time, there are enough policy tailwinds that we have today in place that can make this entire movement and this entire school to work transition happen in a much more smoother way. So I will conclude it by saying that the opportunity to converge between various departments, the opportunity to take the policy tailwinds and implement it various state governments it is definitely giving a lot of enabling environment today for ensuring that education and employability are not operating in silos, but it is a continuum that we can look in the days to come. Back to you, Smita. थैंक यू शुभमोय जी. आपने हाईलाइट किया कि एडोलसेंस के लिए स्कूलिंग सस्टेन करना एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर या डिस्टेंस जैसे इश्यूज के कारण मुश्किल हो जाता है और एम्प्लॉयबिलिटी इनपुट्स ना होने से स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन वीक हो जाता है. इसलिए आपने कम्युनिटी इंटीग्रेटेड स्किलिंग, लाइफ स्किल्स, अप्रेंटिसशिप पर फोकस की बात कही, especially for vulnerable youth or girls के लिए. And you also mentioned that, convergence is very important between all the stakeholders. Now over to the next question for Nidhi. निधि, हम आपसे आपकी पर्सनल जर्नी के बारे में सुनना चाहेंगे. जब आप एजुकेशन, स्किलिंग और वर्क के जो स्टेजेस से गुजर रही थी, ट्रांजिशंस के दौरान आपको कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का इशू हो, स्कीम्स तक एक्सेस हो, फिनेंशियल प्रेशर्स हो या गाइडेंस की कमी, कौन से मोमेंट्स आप सबसे मुश्किल रहे आपके लिए? थैंक यू. अगर मैं अपनी एजुकेशन जर्नी के बारे में शुरू करूं तो ये शुरू होता है एक संस्था से, नारी कुंजन संस्था से. मैंने वहाँ पे 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करी और वहाँ पे पढ़ने के दो कारण हैं. वैसे बहुत सारे कारण हैं मगर मैं आपके साथ में दो कारण शेयर करूँगी. पहला तो है कि पढ़ने का माहौल मेरे गांव में, मेरे घर में बेसिकली और गांव में भी कहे तो उतना सीखने का माहौल नहीं था. तो पहला कारण ये है वहां पर जाने का. दूसरा कारण है कि घर की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है कि आप इवन आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर भी रहे हो तो आपको ट्यूशन जाना अलग से. तो ट्यूशन में तो आप नहीं जा सकते हैं अगर घर की स्थिति अच्छी ना हो तो. ये दो कारण थे मुझे नारी कुंजन में पढ़ने का. 9th 10th घर के आसपास के लोकल स्कूल में पढ़ाई करी और 12th के बाद 11th खत्म हो रहा था. 12th के बाद मुझे एक संस्था के बारे में पता चला, साझे सपने, जो कि हिमाचल प्रदेश में काम कर रही थी. वो नए जमाने के नौकरियों के बारे में उसकी ट्रेनिंग देती थी गांव के औरतों को, लड़कियों को. क्योंकि हमारे दिमाग में ये तस्वीर है कि गांव की महिलाएं हैं तो आप स्टिचिंग करो, सिलाई मशीन खरीद लो. तो ये सारे विचार थे, उस विचारों से दूर हटकर, और हाँ मेरे मन में भी वही था कि यही होता है तो उसको हटकर देखना था. तो मुझे पता लगा साझे सपने के बारे में. उसके वो खत्म होने के बाद मैंने आविष्कार फेलोशिप करी. उसमें मैंने एप्लीकेशन भरा, फिर वो सब जो प्रोसेस होता है, और उसी संस्था में मैंने 1 साल तक स्टेम एसोसिएट की तरह काम किया, जिसमें कि मुझे बच्चों को पढ़ाना होता है, प्राइमरी तक बच्चों को, और एस्पायरिंग टीचर ट्रेनिंग.
तो यहाँ तक किया, और अभी हाँ, अभी उसके बाद मुझे थोड़ा और पता लगा कि क्या करना है जिंदगी में, तो अभी मैं मास्टर कर रही हूँ एजुकेशन में, अजीम प्रेम जी के तहत। और ये जितना आसान दिख रहा है बोलने में कि मैं बोलती जा रही हूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस थे इसमें भी। पहला था कि जैसा मैंने बताया कि फाइनेंशियल, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पे मास्टर कर रही हूँ तो स्कॉलरशिप से, ऐसा नहीं कि फुल है, स्कॉलरशिप से कर रही हूँ। तो फाइनेंशियल दिक्कतें थे इस एजुकेशन जर्नी में। डॉक्यूमेंटेशन की भी दिक्कतें थी। जब मैं नाइन्थ में थी तो मुझे एडमिशन बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि मेरे पास वो अपना बैंक अकाउंट मांग रहे थे, और वो भी खुलना आसान था मगर उसमें टाइम टेकिंग था। तो मगर वो तो कह रहे थे कि जब तक दोगे नहीं तब तक हम एडमिशन नहीं लेंगे। आवास प्रमाण पत्र चाहिए था उनको, जो कि उसमें भी बनने में टाइम टेकिंग है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो भी मायने रखती है डॉक्यूमेंटेशन में और एडमिशन में। तो लगभग 2-3 महीने तक बिना एडमिशन के, उसमें भी कुछ गारंटी नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा, फिर भी मैंने पढ़ाई करी। दिस इज ऑल्सो चैलेंज। तीसरा है, जो कि मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है कि मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी चैलेंज था, वो था कि गाइडेंस। आई डोंट नो कि मुझे 10वीं के बाद में कौन सा स्ट्रीम चुनना है, कौन सा विषय लेना है, जिससे कि मैं आगे की पढ़ाई करूं। और पढ़ाई आगे की करनी क्यों है, दिमाग में तो सिर्फ ये था कि क्योंकि 10वीं तक कर लिए तो 11वीं 12वीं करनी है, 12वीं कर लिए तो ग्रेजुएशन करना है, एक तो ये होता है। मगर करनी क्यों है ये शायद क्लियर नहीं था मन में, कि आगे जाके हम नौकरी करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग 12वीं करने के बाद भी वो स्किल में नौकरी नहीं कर रहे हैं जिसको उन्होंने चुना है। जैसे अगर उन्होंने साइंस लिया तो साइंस की नौकरी ना करके वो स्टिचिंग का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे पता नहीं था कि क्या करना है 10वीं के बाद। तो ये है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा विषय लेना है, कौन कौन से तरह की नौकरियां होती हैं करने के लिए। दीज आर क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस भी नहीं थे, पता भी नहीं था। तो ये 3 चैलेंजेस थे मेरे अभी तक में। थैंक यू। थैंक यू निधि। आपकी जर्नी क्लियरली दिखाती है कि ट्रांजिशन के टाइम सबसे बड़ा चैलेंज गाइडेंस का होता है। स्कूल में ये समझना मुश्किल होता है कि कौन सा सब्जेक्ट या स्किल आगे जॉब से कैसे कनेक्ट होता है। काफी कुछ आपको ही अपने इनिशिएटिव और ड्राइव के कारण आप आगे बढ़ सके। एक्चुअली आपने ये भी बताया कि प्रैक्टिकल स्किल्स, पीयर सपोर्ट और एनजीओस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट रहा है आपके लिए। और अगर आपकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि अगर सिस्टम्स और एनजीओस बेटर कोऑर्डिनेट करते तो ये ट्रांजिशंस और ज्यादा स्मूथ हो सकती थी। थैंक यू निधि। नाउ Sumina, can we proceed to the round 2 of questions for our panelists? Sanjay ji, next question for you. एजुकेशन, स्किलिंग और सोशल प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे स्कीम्स हैं। फिर भी हम देखते हैं कि ये वल्नरेबल यूथ ट्रांजिशंस के दौरान सिस्टम से ड्रॉप हो जाते हैं। इस गैप को एड्रेस करने के लिए कौन से अप्रोचेस या सिस्टम लेवल इनोवेशंस यूज किए जा रहे हैं, और सरकार के लिए अब तक का सबसे बड़ा लर्निंग क्या रहा है? ओवर टू यू संजय जी। थैंक यू अगेन स्मिता जी। मैं इसको फिर से उदाहरण के थ्रू में बताना चाहूँगा। भारतीय परिवेश में जब शिक्षा का शुरुआत हुआ था तो उसमें 3 मुख्य वजह थे जिसके वजह से शिक्षा को महत्वपूर्ण दिया गया। पहला था कि पहले ऐसे सभी को शिक्षा दिया जाए ताकि बेहतर प्रोडक्टिविटी ह्यूमन डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से हो। दूसरा अंग था कि परीक्षा भी हो। उसका परीक्षा होने के बाद उसको, जैसे निधि बता रही थी कि हम 12th के बाद हम किस स्ट्रीम में जाए, क्या करें, वो एक ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं हुआ करता था। एक निपुणता होती थी, उसको निपुण बोल सकते हैं, जिसको आप महारत, एक अलग शब्द भी होता है कि आप उस कार्य क्षेत्र में ज्यादा महत्व आप रखते हैं या आपकी इंटरेस्ट है। और तीसरा होता था कि आप एक सोसाइटी का कॉमन शेयर्ड वैल्यू भी आप उसको सिखाते हैं।
ये तीनों जो कंपोनेंट है ना, अभी के ग्लोबलाइजेशन इशू में, पूरे ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण पीरियड में इसकी जरूरत है, और इसको महसूस गवर्नमेंट भी कर रही है और सिविल सोसाइटी भी कर रही है। और हमारे खासकर जो आपने बताया जिस क्वेश्चन में कि हमारे इस हाशिए पे रहने वाले व्यक्ति हमें से छूट जाते हैं, ये इस चीज को महसूस करने के लिए शायद हमने, फिर से वही बता रहा हूं कि जब ये बताया जा रहा था कि हम स्किल डेवलपमेंट को किस मंत्रालय के तहत रखा जाए, तो एक था कि हम शिक्षा मंत्रालय या मानव विकास मंत्रालय के थ्रू रखें, या हम लेबर रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू रखें, या डेडिकेटेड मिनिस्ट्री डेवलप करें। तो आप इस चीज को देखें कॉमनली, तो कायदे से ये ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट है, और इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑब्वियसली होना चाहिए, जिसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे प्रोग्राम को कोशिश किया चलाने का। जो आपने उदाहरण दिया था, जिसमें हम अभी रिसेंट में 2024-25 में एक प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाया गया था, ताकि ऐसे बच्चे जो 10th 12th करके 21 से 24 साल के उम्र के लोग हैं, वो उसमें इनरोल्ड हो और इंटर्नशिप बने, और फर्दर दे कैन एक्सेल इनटू देयर इंडस्ट्री टू फर्दर अडॉप्ट हो जाए उसी में। हालांकि उसके जो क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और ये अच्छा नहीं रहा ये भी हम लोग को रियलाइज करने की जरूरत है, क्योंकि वो टारगेट ग्रुप एस्पिरेशन उनका हाई है, और जो जिस तरह का हमने स्टाइपेंड देने की कोशिश किया, जिस तरह की कार्ड चली, हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में उनको टैग करने की कोशिश की, शायद वो उससे खुश नहीं थे। तो जब 1.5 लाख के लगभग अगर हमारी जरूरत थी, और हमें केवल 22,000 लोग इनरोल हो रहे हैं, उसमें से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए एज ए गवर्नमेंट पॉलिसी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए सोचने की जरूरत है। जो 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 हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने इस चीज को शुरुआत की, लेट्स हैव डेडिकेटेड डिपार्टमेंट विच विल give the platform where right from the education to skilling then further placement, every kind of support we can provide them। तो ये चीजें हमने कोशिश करने की कोशिश किया है। जैसे DDU GKY मैं देखता हूँ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के थ्रू भारत सरकार की योजना है, उसमें चैलेंज वही है, पीपुल्स फ्रॉम, इट इज मैंडेट टू हैव वल्नरेबल सोसाइटी के लोग, वल्नरेबल ग्रुप के लोग 50% लोग उसमें आए, लेकिन उनकी जो रिटेंशन विद इन ट्रेनिंग एंड रिटेंशन आफ्टर ट्रेनिंग इन प्लेसमेंट इज वेरी लो। हम कहते हैं उसको मोर देन नॉट 35% है, ऑल्दो इट इज रिक्वायर्ड टू हैव 100%। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस, दे कांट सस्टेन टू कंप्लीट द 3 4 6 8 मंथ ऑफ ट्रेनिंग, और फर्दर जिस तरह का रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का उनको एक्सपेक्टेशन है फैमिली नीड को पूरा करने के लिए, वो मार्केट नहीं दे पा रहा है। शायद वो मार्केट अगर इंट्री लेवल, हम उसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म में नेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो अलग अलग क्वालिफिकेशन पैक होते हैं, उसके आधार पे सैलरी निर्धारित की जानी चाहिए इंडस्ट्री से, गवर्नमेंट के साइड से, शायद इसको पूरा नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि कैंडिडेट के एस्पिरेशन अभी के पीरियड में जो वल्नरेबल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनकी इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट जिस तरह की है, तो रिलेट हमेशा करते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द पीपल हु आर गोइंग फॉर प्लेसमेंट विदाउट ट्रेनिंग और स्किलिंग, और विद ट्रेनिंग एंड स्किलिंग। तो ये डिफरेंस इंडस्ट्री नहीं रियलाइज कर रही है। सो दीज आर द चैलेंजेस विच इज टेकिंग केयर बाय न्यू नॉर्म्स और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इट इज अंडर अगेन, इट इज इन आइडियल सिचुएशन। प्रैक्टिकली क्या होगा, बिकॉज वी आर नॉट स्टिल एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन, प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशन है, नॉट हायर एस्पिरेशन है, वो पूरा हो पा रहा है। थैंक यू। थैंक यू संजय जी। आपने हाईलाइट किया कि स्कीम्स होने के बावजूद भी सिस्टम फ्रैगमेंटेशन अभी भी बड़ा चैलेंज है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं और अकाउंटेबिलिटी अलाइन नहीं होती है। जो स्कीम्स है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो रियल डेटा है, जो ग्राउंड पे रियलिटी है, वो ध्यान में रखे। इसी वजह से ट्रांजिशंस के वक्त कंटिन्यूटी ऑफ सपोर्ट टूट जाती है। थैंक यू संजय जी, दैट वाज ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर सुबमोय जी। I would request Smita ma'am to, if you could just summarize this bit in English
also for the rest of our audiences as well. Sumina, your internet connection is not good. If you could Smita, summarize, can you please summarize this in English? Yeah, a little Okay. bit. What Yeah, is yeah, it? sure. So here, Sanjay, he highlighted that, despite there being various schemes, due to the misalignment between the various departments and, the fragmentation, that becomes a big challenge, which leads to the youth being not being able to transition from, from the education to employment or to the right kind of skilling. And it is extremely important that these schemes keep the reality in mind. What is actually the reality of the youth, the challenges faced by them, and keeping that in mind, these schemes need to be adapted. Because of these gaps and the misalignment, many a times during this transition, that continuity of support breaks down and where the youth suffers. Okay, yeah. Yeah, next question for Shubhmoy ji. So, अगर हम स्केल पर देखें तो स्कूल रिटेंशन, करियर गाइडेंस और एम्प्लॉयबिलिटी सपोर्ट करने के लिए कौन से इनोवेशंस या इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स आपको सबसे इफेक्टिव लगे हैं? इन अप्रोचेस को पायलट्स का तक सीमित रखने के बजाय इंस्टीट्यूशनलाइज और सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम्स, पार्टनरशिप्स या फाइनेंसिंग में कौन से चेंजेस जरूरी होंगे? थैंक्स बेटा. सो आई थिंक जब हम इम्प्लीमेंटेशन मॉडल की बात करते हैं और स्केल मॉडल की बात करते हैं, सिस्टम के साथ काम करने की बात करते हैं, तो आई थिंक द फंडामेंटल पॉइंट रिमेन्स दैट वर्क विद द सिस्टम. So there is no point in standing or creating a parallel structure, a parallel system जो शायद sustainable ना हो, especially CSOs के लिए. So it is very important that from day one, how are you aligned with the system? How are you leveraging the existing schemes and policies that the system is developing, and how are you helping them to push their own agenda? So it is end of the day not the CSO's agenda, but when you are working with the system, how are you helping them to enable or support them to achieve their own agenda, and that really helps in working. What I feel in terms of school retention, and जो संजय जी भी थोड़ा सा touch base कर रहे थे अपने point पे, is also I feel important to understand the context very immersively, because the context is so different across the country, across within the each state or district, so to say. The school retention के अपने अपने challenges हैं. Not necessarily single framework will help anyone, right, in terms of when we are addressing issues like school retention, for example. And like I was saying in my previous point, that it is important to understand that primary grades may we probably have still managed to achieve the net enrollment rate, where a majority of children are going to school for whatever reason. Sometimes the reason could be midday meal also, but at least they are going to school. Where they are not coming to school is where we have to identify that what is not working within the system, within the school system. Again, bringing those points about whether the teacher is using innovative approaches, whether the education is still confined within the classroom, or we are able to take learning outside the classroom as well. Are we introducing different approaches or using different approaches कि हम sports को भी use करें, music को भी use करें, theater को भी use करें, उस किस्म की चीजें हम लेके आ पा रहे हैं कि नहीं, but at the same time it is absolutely important that the teachers and the system is trained to use those kind of resources going forward. And another piece that at least becomes very critical, especially when we are talking about the transition to the school to work, and Smita, to your initial note about ki retentionship kaise hoga employment mein, it is important that the focus has to also go beyond academics. How we talk about critical life skills that are required today at the workplace, at the age when I'm 15, 16 years old, and probably I'm at the cusp of moving into the world of work. So what are the kind of life skills that are required, probably that each one of us use every day in our workspace, right? हम वो हर life skills को, मैं अभी भी एक life skill use कर रहा हूँ और आप लोग भी एक life skill use कर रहे हो, और हम अपने रोजगार की दुनिया में हर दिन वो skill use करते हैं जिससे हम better perform कर सके. At the same time, at a school level, what is important is that हर
phases mein there is a continuum. So if I'm working in the age group of 15, 16-year old, and then I'm going closer to 18, where the young person now is eligible into the world of work, how I'm introducing things like entrepreneurial mindset. Because again, I am saying that only training or making children ready for job may not help us in the longer run. So things like आप ग्रीन स्किल्स पे बात कर रहे हैं क्या, आप जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है आप उन चीजों को एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्या बच्चों के सामने, आप एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पे बात कर रहे हैं क्या. सो आई थिंक इट इज क्रिटिकल दैट एट सर्टेन एज वी सी दैट कंटिन्यूम, वी सी दैट ओके प्राइमरी एजुकेशन के बाद व्हाट इज द सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन spaces that are required, and that eventually helps the transition. I want to just conclude by giving one example. And when it comes to innovation, and very recently, Government of Meghalaya, just in this month only, they passed this resolution in their cabinet meeting. They are calling it as a community integrated skill learning space. Now, this community integrated skill learning space is actually initiated by the school education department. And what they are saying is that every child will learn one skill from their family, so from their parents. And what does it mean is कि अगर किसी के माँ बाप खेती करते हैं, एग्रीकल्चर में है, then that is a skill the child can learn. If someone's parents are in any other work like a technician or a carpentry or whatever it is, the child will be allowed to learn that particular skill, and the government and the education system will provide certain credit system to that child for whatever skills they have learned from their family members, and they are able to apply those skills. So what I want to bring that point is that this is how the government is also taking innovative models where they understand that every learning will not be able to be possible within the classroom or within the school, and how this kind of things helps them to bridge the child and bring them more connected to their family roots, to the kind of occupation the family is already in, and how the children start valuing those occupation, and then there is a connectivity between the parent, the children, and the entire ecosystem. So I think these are the kind of innovative models that we are learning today और हम देख पा रहे हैं, which is extremely unique. And we hope that more these kind of innovations come into the education space, that automatically brings that skilling, that enables that skilling space going forward. Thank you. Thank you, Shumaji. So you did point out that, while you're able to maintain education at primary level, but after that it is a challenge. आपने ये बताया कि स्कूल रिटेंशन और करियर गाइडेंस के लिए लाइफ स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड यूजिंग डिफरेंट मीडियम विच अपील्स टू द चाइल्ड, खेल के द्वारा टीचिंग और डायलॉग का जो मीडियम आपने बनाया है, एंड यूजिंग प्लेग्राउंड एज अ लर्निंग स्पेस, एंड देन और पूरे इकोसिस्टम के साथ मिलकर काम करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. You also highlighted that entrepreneurial green skills are also other livelihoods that the youth can be skilled upon, trained upon, rather than only considering the conventional form of education. Also, it is very reassuring to know that the government is understanding the importance to keep the connection with the family alive while considering the skilling for the youth. Thank you so much. Over to our next question to Nidhi. निधि, आज आज अगर आप पीछे मुड़कर देखती है तो आपकी जर्नी से कौन से लेसन्स सीख आपको फ्यूचर प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के लिए इम्पॉर्टेंट लगते हैं? आपके हिसाब से कौन सा सपोर्ट, गाइडेंस या सिस्टम लेवल चेंज होता तो यंग लोगों के लिए एजुकेशन कंटिन्यू करना, स्किल्स बिल्ड करना और स्टेबल एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ना ज़्यादा आसान होता? ओवर टू यू निधि. थैंक यू मैम. तो अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो मैंने जैसा बताया था कि 10वीं के बाद मुझे पता नहीं था क्या करना है, और फिर मैं साजिश सपने गई. वहां जाने के बाद मुझे नौकरियों के अलग अलग रास्ते दिखे, पता लगा कि क्या होता है. और
साजिश सपने और आविष्कार में जब मैं वो ट्रेनिंग कर रही थी तो कौन कौन से स्ट्रीम चूज करने से क्या मिलेगा, कौन सा नौकरी कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रास्ते, कुछ रियलिस्टिक था ऐसा। अब स्कूल में तो था कि चलो पुलिस बनना है, डॉक्टर बनना है, जो कि शायद सबके लिए रियलिस्टिक नहीं होता। अगर पुलिस वही बनते हैं जिनकी हाइट हो, वो सब कुछ हो, तो जो कुछ रियलिस्टिक हो तो सपोर्ट। और वहाँ पे नए जमाने की नौकरियों के लिए वो तैयार कर रहे थे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं तो आप कैसे उस कितने आप समाधान निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें भी सीखा, जिससे मुझे सपोर्ट मिला आगे चल के। लगातार ये बातचीत करना कि आगे करना क्या है, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो क्या, किस में पढ़ाई करनी है और क्या करोगे, तो और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या किन से बात कर रहे हैं, क्या हम कौन से वेबसाइट पे आप देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें ड्यूरिंग माय फेलोशिप वहाँ पे भी बहुत सारे इंटर्न ऐसे आते थे जो कि अजीम प्रेम जी से ही आते थे। तो उनसे बात करके पता लगता था कि वो मास्टर कर रहे हैं, उसमें क्या होता है। तो ये भी एक सपोर्ट मिलता गया मुझे आगे पढ़ने के लिए, आगे की जानकारी पता करने के लिए। अगर मैं जब जॉब कर रही थी तो जैसे ऐसा तो नहीं कि स्कूल में जो सीखा वो अप्लाई कर रहे हैं। मेल कैसे लिखना है, और भी एक्सेल शीट पे कैसे काम करना है, ये सारी चीजें भी पता चली ड्यूरिंग द माय फेलोशिप और ट्रेनिंग। तो ये सारी चीजें थी, और मैं क्योंकि संस्थाओं से जुड़ती आ रही थी तो मुझे ये सारे सपोर्ट मिलते गए और पता लगता गया। अभी भी मैं जब अपनी बहन से पूछती हूँ जो कि मेरे साथ ही वो घर पे रहती है, पढ़ती है, 12th कर रही है, और मैंने सेम सवाल उससे पूछा आगे क्या करना है, और मेरे साथ भी और कुछ लोग थे, तो उसको नहीं पता था। और ऐसा नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं है, उसको बहुत पता है, उसको डिजाइनिंग का बहुत शौक है, क्राफ्टिंग का बहुत शौक है, लेकिन उसको पता नहीं है। और इवन मुझे भी नहीं पता कि इन सब का कोर्स होता है करने के लिए। मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने टीचिंग फेलोशिप करी, लेकिन उसके लिए पता नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सपोर्ट मिलता मेरी बहन को भी, उसको भी पता होता तो वो भी आज अपना उसको भी पता होता आगे क्या करना है। एंड अगर मैं पॉलिसीज में या फिर कुछ ऐसे करिकुलम में ऐसे कुछ चीजें जोड़ने की बात करूं जिससे कि आसान होता, तो वो है कि शुरुआती दौर में, जैसे कि बच्चों से शुरुआती दौर में ऐसे करिकुलम में ऐसी चीजें ऐड कर दी जानी चाहिए कि शुरुआती दौर से ही बच्चों को पता हो कि कौन कौन से स्ट्रीम्स है। और उस लेवल से, ऐसा नहीं कि अचानक से प्राइमरी में ही बता दे कि चलो ये बनना ये बनना, ऐसे कुछ लेवल होने चाहिए कि अ, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये इसलिए पढ़ते हैं, इसको ये पढ़ते हैं, कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि पता हो बच्चों को कि क्या होता है। 10वीं के बाद जब बोर्ड एग्जाम खत्म होता है और नया जब 11th का शुरू होता है, उसमें बहुत सारे गैप, 1 महीने का 2 महीने का गैप होता है। तो ऐसा है कि उस दौरान भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो स्कूल में या फिर गांव में जाकर, जिसमें बताया जाए कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे आप ये पढ़ोगे। और थोड़ा सा ट्रेनिंग जैसा भी है जिसमें उनको सिखाया जाए मेल करना, क्योंकि ये सारी चीजें आसान तो लग रही है लेकिन उस टाइम पता नहीं लगता है। थोड़ा सा कंप्यूटर की चीजें और फोन में भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे वो सीख सकते हैं, ये जो कि नौकरी में काम आने लायक है। तो ये लगता है मुझे 2 चीजें हैं कि करिकुलम में ऐड होना चाहिए, और तीसरा ये कि 10वीं के बाद जो समय बच जाता है उसमें कुछ युवाओं को ट्रेनिंग जैसा देना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच निधि। तो आपने ये बहुत ही सही पॉइंट बताया कि करियर गाइडेंस करिकुलम का हिस्सा होना चाहिए। किस करियर के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को शुरुआत से ही ये समझ आए कि कौन सा सब्जेक्ट कौन सी करियर से जुड़ता है। और थियोरी के साथ प्रैक्टिकल स्किल्स, जैसे आपने बताया सर्टन डिजिटल लिटरेसी, जैसे ईमेल राइटिंग या बेसिक डिजिटल टूल्स भी सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि ये तो अभी 21st सेंचुरी स्किल्स है। हम सब वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये तो आना ही चाहिए होता है, राइट। आपको ज़्यादा लोगों से बात करके आपको बहुत कुछ खुद फिगर आउट करना पड़ा। अगर आपको गाइडेंस एट द राइट टाइम
आपको ही ऑफर किया जाता, आपके पास आता गाइडेंस, तो काफी आपका टाइम बचता और बहुत काफी आसानी भी होती आपको। एंड आपने ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट रखा है कि जब बच्चों को जो 10th 12th के बाद जो लॉन्ग वेकेशन होता है, थोड़ा टाइम रहता है, तभी अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप करके वो थोड़ा और अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। Thank you so much, Nidhi. So that was the end of our panel discussion. I think, Sumina, you would like to take the poll at this time? No, thank you so much, ma'am. If you could just quickly summarize what Nidhi shared in English once again for all the audience, and then we can take up the questions and we can open the floor for discussion, and then poll can be towards the end of the session. Okay, fine. Yeah. So what Nidhi pointed out was that it's very important that right at the beginning, when in school, early on, career guidance should be included as part of the curriculum, and it should be clarified to the students as to what are the pathways that, if certain subjects lead to what type of careers. Because keeping in mind the currently out there in the world, there is a whole gambit of various careers that can be pursued, rather than sticking with the very the what we are conditioned to believe, the very conventional courses of education. So along with that, along with the theory, the subjects that they study, it's very important to take digital literacy to the schools at a very young age, because that is the expectation of the outside world. Everything is digital, technology is used in our everyday lives. So very basic skills like email writing, using Word, or the various digital tools that are part and parcel of our daily life should be inculcated as part of the curriculum in the school itself. A lot of Nidhi had to figure out a lot of things on our own, talking to various people. If these lot of these programs or this guidance, this mentorship had been brought to her doorstep rather than her reaching out, it could have saved her a lot of time and a lot of energy and effort, and made her journey a little more easier. And also, another very good point that Nidhi brought up was that, especially during the times of certain transitions, like at the end of the 10th grade, 12th grade, where the students have a little bit more time to themselves, waiting for the results, it could be very effective use of their time if they could be encouraged and offered certain internships, certain apprenticeship, which gives them a good visibility into what the professional life expectations are, and they could be better prepared. So yes, does that help, or would you like me to elaborate further? Works. We can go ahead with the discussion, open question and answer session. Okay, yeah. So we have received some great questions today and during the registrations. So we'll take them up to our esteemed panelists to respond to them. The first question, just give me a moment, please. Yeah, first question that we'll go with first to Sanjay ji. Sanjay ji, if you could, share with us, the question is, what is the employability opportunities for the youth with special needs or the differently abled? Actually, there is dedicated sector skill council, which is called as sector skill council person with disabilities. They have given regulation to entire sector skill council. Whatever the courses they will develop, they will take the permission by this council. What way their module should be defined, what way the infrastructure would be there. So every skill development program which will governed by any state government or any ministries, it is mandated to fulfill their due diligence processes. So whether it is retail sector skill council हो या आपका IT ITS हो या tourism sector skill council हो, सभी में they have given mandate
if certain particular group belongs to a special level group, what would be the process by which they will instruct the pedagogical ecosystem, and what way it is mandated to have placement. तो ये चीजें हैं, मतलब I'm saying the schemes which exist and what is the process which is going on, but at the same time practically it is required to sensitize the placement opportunity partners they are giving, like particular industry, they are not sensitive to have placement to such kind of people. तो बोलते हैं ना गवर्नमेंट ने दे हैव गिवन प्लेटफॉर्म, एट द सेम टाइम द इंडस्ट्री नीड्स टू कम फॉरवर्ड to give the mandate, to give certain positive discrimination towards differently able people to be engaged into employability of different industries. Thank you. Thank you, Sanjay ji. The next question is for Shubhmoy ji. The question is, what is the role of parents to provide life education or skills to their children? So I think a role of parents more or less remains the same, be it life skills or be it any other domain, so to say, which is about creating more opportunities, creating more spaces for children कि वो घर पे इन skills को practice कर सके, उनके पास choices हो, उनको judge ना किया जाए कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं. I think if the parents can create that environment, if the parents can create that ओपननेस वेयर उस किस्म के डायलॉग अपने बच्चों के साथ वो कर सकें कि वो स्कूल में क्या कर रहे हैं, वो आज क्या सीखे हैं, एंड क्या सीखे हैं, नॉट नेसेसरीली एकेडमिक सब्जेक्ट्स में, बट जनरली इन लाइफ कि आज के दिन में व्हाट हैपेंड टुडे एंड वाज देयर एनी ऑब्जर्वेशन, इज देयर एनीथिंग दैट यू wish to share. So I think it is about creating those small opportunities. It is about creating how simple skills that everyone is demonstrating within their households, in their chores that they are doing in their households. So I think those are the kind of opportunities that parents can create without being judgmental, without typecasting or stereotyping anything else, anything in that context. And I think those are the avenues that parents can provide to children to practice these skills more and more and to be open with them, is what I feel. Thank you, Shubhmoy ji. Nidhi, the next question is for you. Somebody has asked, they want to gain practical insights into effective education to employability pathways for youth from vulnerable family context. Can you explain this question? Yeah. So what this question means is कि आपको रियलिटी में कैसे आप थोड़े आपके जो सीख रहे हैं प्रैक्टिकल बेस्ड पे कि जैसे एजुकेशन से एम्प्लॉयबिलिटी के लिए क्या है जो आप पॉइंट्स जो यूथ फ्रॉम स्पेशली जो वल्नरेबल फैमिली से आते हैं उनके लिए आपके लिए क्या प्रैक्टिकल टिप्स है? I'm thinking this question. Okay. So can I take for just a second? Sure. You take your time. We'll come back to you. Okay. Then there's a question. What coordinated? This is I could answer this. What coordinated systems can ensure children from alternative care get equal access to industry mentorship and job placement? From my experience at CSA, through the aftercare program, equal access to mentorship and jobs for children from alternative care really depends on coordinated systems, not standalone interventions. So what has worked for us is early transition planning, starting well before a young person exits care, जहाँ education, skilling और career pathways को एक साथ मैप किया जाता है. Second, strong convergence between child protection systems, skilling partners, industry mentors, and employers is very, very critical. ताकि documentation, eligibility,
ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स एक ही फ्लो में हो. थर्ड इज द मेंटरशिप एंड पोस्ट प्लेसमेंट सपोर्ट, which make a big difference. Industry exposure, role models और regular follow up ensure करते हैं कि young people सिर्फ placed ना हो बल्कि jobs में they are able to continue, वो टिक पाए jobs में. So for children from alternative care, I would summarize and say coordinated case management to ensure that there is right career guidance, keeping with the interest and the aptitude of the youth, employer partnerships, and sustained aftercare support, which includes mentorship, continuing even after the youth is placed, together create real access for stable employment. Yeah. So now going to, would you like to, Nidhi, answer the question, or would you like to take some more time? No, I can answer. मुझे लग रहा है कि कुछ कोई आसान तरीका या आसान जैसा मुझे समझ में आया कि अ, वैसे लोग जो कि जो आसान तरीके से आ सके, जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छे ना हो या फिर वनरेबल हो, तो आसान तरीका यही है कि अच्छे तरीके से पॉलिसीज के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में उनको बताया जाए या फिर पता खुद करना है. तो ये एक ही आसान तरीका लग रहा है. बाकी इसके अलावा तो मुझे कोई आसान तरीके नहीं लग रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचना या फिर आगे के लिए सोच पाना. बाकी तो फिर यही है कि उनको बताया जाए अच्छे से कि कौन कौन से पॉलिसीज हैं, इस पॉलिसी से क्या होगा, कौन कौन से तरीके हैं. बस यही एक आसान तरीका लग रहा है मैं, अकॉर्डिंग टू मी. Thank you, Nidhi. That was a very honest answer. Thank you so much. Next question, संजय जी आपके लिए है. तो किसने पूछा है, could you please share the list of government schemes and programs focused on skill development and employability? अच्छा, जिन्होंने भाई बहन ने अगर ये क्वेश्चन किया है उसको जस्ट स्किलिंग पर्सपेक्टिव से ही मैं रिलेट करना चाहता हूँ कि अभी भारत को इस आधार पे नहीं देखना चाहिए कि भाई रिटेल ब्ला ब्ला जो भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ट्रेड्स है उसमें ट्रेनिंग किस तरह मिलती है. हमें रिलेट करना चाहिए ग्लोबल पर्सपेक्टिव में. जब चाइना क्लास 5-6 के बच्चों को रोबोटिक और डाटा साइंस प्लस एआई के बारे में बताता है, accordingly that government of India is also expecting कि how we can think to have dignified and upgraded kind of trades to our target group which can give competition at global level. तो मल्टीपल अभी ट्रेडिशनल वे में हम बोले तो अगर वो एआई करेंगे तो शायद ढेर सारे स्कीम्स मिल जाएंगे. भारत सरकार के तरफ से 3-4 मेजर इंपोर्टेंट स्किल डेवलपमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहा है. जो डीडीयू जीकेवाई प्रोग्राम एक हो गया, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों मतलब युवा युवतियों के लिए, जिसमें लगभग 50% जो हाशिए पे खड़े हैं मतलब आदिवासी, दलित और प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स के भी जो लोग हैं उनके लिए मैंडेट है कि ये ट्रेनिंग लें. उसी तरह से अभी कुछ दिन पहले तक PMKVY चला है, अभी उसके अलग वर्जन भी आने वाले हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है. ये मेजर 2 इम्पोर्टेंट, ये जैसे DDU का प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, PMKVY प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का है. इसी तरह के मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज के भी कई सारे प्रोग्राम्स हैं जो स्किलिंग वर्सेस एम्प्लॉयबिलिटी का काम करवाती है. तो वो अगर वो वेबसाइट पे सिंपल जाएंगे और एक अगर सभी लोग अगर नोट कर लें तो एक है सिद्ध पोर्टल, सिद्ध SIDH, सिद्ध पोर्टल को रीड करेंगे तो ढेर सारे स्कीम्स वहां पे दिखेंगे. एट द सेम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे कई सारे इकोसिस्टम वहां पे दिखेंगे कि कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज के प्रोग्राम चल रहे हैं. स्पेसिफिकली अदर अपने स्टेट वाइज भी प्रोग्राम चलते हैं. जैसे बिहार में अगर मैं उदाहरण दूं, अगर बिहार के लोग यहाँ जुड़े होंगे
तो सामने जैसे मिनिस्ट्री एक है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, वहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं, कुशल युवा प्रोग्राम। कुशल युवा प्रोग्राम वो बोलता है कि आपको हम एम्प्लॉयबिलिटी पर्सपेक्टिव से सॉफ्ट स्किल और बेसिक आईटी का हम ट्रेनिंग देंगे ताकि आप एक ट्यून्ड हो जाए इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो बिहार के साथ निश्चय प्रोग्राम में एक ये कंपोनेंट है। जीविका एक बड़ा ही इनोवेटिव काम कर रही है, जो निधि भी बता रही थी और भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैरियर गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आखिर चौथी पांचवी के बाद कहाँ जाए। मैं नवोदय विद्यालय मुजफ्फरपुर बिहार से पढ़ाई किया था 10th, और मुझे मतलब मेरा बैकग्राउंड इस तरह का नहीं था, बट कुछ लोग बोले कि भाई रेलवे टिकट की तैयारी कर लो, कुछ लोग बोले आईटीआई कर लो। बट फर्दर जैसे जैसे संगत का असर पड़ा तो मैं आईआईटी बॉम्बे गया, टीएसएस गया, फर्दर रिटर्न बैक टू गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो अल्टीमेटली मैटर करता है कि क्या एक्सपोजर, क्या पीयर ग्रुप आपके पास है। तो जीविका ने लगभग 500 से ऊपर कम्युनिटी लाइब्रेरी शुरू की है। कम्युनिटी लाइब्रेरी है जहाँ पे कम्युनिटी दीदियों द्वारा, जीविका के दीदियों द्वारा वो लाइब्रेरी चलाई जाती है। बट द वर्चुअली मेजोरिटी ऑफ द रिसोर्स पर्सन आर फ्रॉम डिफरेंट लेवल। आईआईटी के लोग हैं, आईएम के लोग हैं, टीएसएस के हैं, जेएनयू के हैं, इरमा के हैं, अजीम प्रेम जी से लोग हैं। तो वो जुड़ करके वो बताते हैं कि अगर आप ये करेंगे तो दिस विल बी द कैरियर प्रोग्रेशन बाय विच यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। तो बिहार एक पहल करने की कोशिश करती है, नॉट फॉर द सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम पीपल, बट द पीपल हु आर स्टिल फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। उनके माँ पिताजी अभी भी उस गांव में खेती करते हैं या मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे किस तरह आईआईटी में जाए, आईएम में जाए। तो बिहार में जीविका इस तरह की पहल करने की कोशिश कर रही है। Okay, thank you, Sanjay ji. Shubhmoy, so this will be the next question for you, and I think in interest of time, this would be one of the last ones before we take on one, which is for all the audience and the speakers, of course. What mindset need to change within systems themselves, that is schools, skilling centers, employers, for vulnerable youth to be seen as long-term assets rather than short-term beneficiaries? Thanks, Sudha. And I think the only point I want to add is that probably it is not only for the vulnerable children, but for everyone, how the system should look is how what we also experience when we engage with system is how are they understanding and defining success for young people, and what is the indicator of success. Successful बच्चा कब है? स्कूल में जब उनको एकेडमिकली अच्छे स्कोर मिलता है, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, क्या वो तभी सक्सेसफुल है? और या देर आर एनी अदर वेज how we can start defining success. So I think that mindset shift, that कि सिर्फ एग्जाम्स में एंड ऑफ द ईयर अच्छा स्कोर लेके आना will not and cannot define the capability of a child or a capability of a young person. That mind shift is very critical, because the moment that mind shift happens, then it starts creating opportunities within the system to adopt and accept a lot of innovative things that are possible to do with the system. And the last point about the mindset is also to critically understand that with children and young people, there are two critical windows which science says, right? It's not I am saying or you are saying, anybody saying, which is the early child development phase, the ECD phase, and then it's the 9 to 8 to 19 years, the adolescent phase, right? So how are we unleashing these two phases for children and young people to create more opportunities, to give them the maximum and varied inputs, so that वो उस तरीके से थ्राइव करें अपने लाइफ में आगे जाके. So I think these two things, how are we defining success, not only through academics, and at the same times how we are unleashing those two critical windows from say 0 to 19 years, so to say. Yeah. Thank you, Shubhmoy. That was very well explained and put together. Now, this would the last question, which is to all the three panelists, and also open to anybody from Miracle Foundation. Is currently in India ऐसे कौन से मॉडल है जो आपको लगता है कि यूथ स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही इनोवेटिव और इंस्पायरिंग है? So
any of the speakers, if you could raise your hand and answer Can I it. go, Smita? Because I Yes. will just repeat my point and I will also address, because I think वो chat में भी आया हुआ था, that I will use the Meghalaya model that I said previously. It's the community integrated skill learning system, which I found very innovative. It is not about keeping the child away from education. It is run by the school education department. It is giving credit scores to the child when they are practicing those skills that are run by the family, but it is of course not happening at the cost of the child missing out on school and going only into occupation. So I feel that creating those localized opportunities and as local as within the family, I find those kind of opportunities currently very innovative in the current context. ये कुछ जगहों पे, जैसे जर्मनी के बहुत बड़े स्कॉलर हुआ करते थे, वाल्ड्रॉफ मॉडल के स्कूल अभी चूंकि इंडिया में बहुत इलीट सोसाइटी के लोगों के साथ वो जुड़ा हुआ है, वो स्कूल में उसी तरह के लोग जाते हैं, शायद वो देहाती पना नहीं कभी एक्सपोजर हुआ है। तो वाल्ड्रॉफ मॉडल स्कूल जो लाइफ स्किल मॉडल है, वो इनफैक्ट स्किलिंग वर्सेज एजुकेशन दोनों को मिलाता है। तो आई थिंक हमारे बिहार में कुछ जगह पे कुछ हमारे तरह के लोगों ने एक शुरुआत की है, एंड आई थिंक दे हैव गिवन मैंडेट टू हैव ऑल सेक्टर स्किल काउंसिल के कुछ कंपोनेंट को जोड़ें, उसके बाद ट्रेडिशनल स्कूलिंग इसको सिस्टम को भी जोड़ें, ताकि दे कैन पिच इन टू मेन स्ट्रीम सोसाइटी। तो ये मॉडल हमको लगता है कि बेहतर होगा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी शायद इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि हम नेशनल एनसीईआरटी के जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है उसको भी पूरा करने में उसको मदद करें। Okay, yeah. So those were the questions that we could take up, keeping in interest of time. That was a very, very interesting discussion, the panel discussion, and the questions and the answers provided. Thank you so much to the panelists. It was wonderful. I'm sure there are a lot of takeaways from this discussions for all the audience, including myself. And again, big thanks to the audience for keeping it interesting and for coming up with very in-depth and insightful questions. Over to you, Sumina. Thank you. Thank you so much, everyone. Thank you for such an engaging discussion. So I would quickly just share about our upcoming leadership dialogue. Which is happening on 24th of March 2026, and this will be around the theme measuring what matters in family strengthening. Since its entire year 25-26, we took up themes around family strengthening. So the last leadership dialogue in the series would be around measuring what matters in family strengthening. So please do register once the link is open. And now I'll quickly share the feedback poll with all of you. I would request everybody to answer the feedback questions. Thank you so much to everyone. You can all quickly share the feedback that how useful was the session for all of you and for your organizations respectively, whatever you feel, so that we can really work around it. And we'll also be sharing the feedback, the questions that came up during the panel, and the ones that have been answered and the ones that have not been answered yet. We'll compile them all in an FAQ and share with all of you. And also a certificate will be shared with everyone for registering and participating soon after the discussion. Thank you so much, everyone.